Hello students. So as promised, I am here with something which is very important for every student when you study English. Now what happens is there is a book that is called Word Power Made Easy, written by a writer Norman Lewis. This we always tell our students to read this book. When you buy this book, if you buy it, so when you buy this book, what happens is you find it difficult to begin with. You find it difficult how to understand, how to start reading this book. This is something very important for every student. They buy this book, but they leave it ultimately because the reason they do not know how to really go about this book. So that is the agenda of the class today. I want to tell you कि ये book पढ़नी कैसे है. Okay? You buy this book, it is available online, PDFs are available. If you buy a physical book, I think that will be very good for you. First thing is, advice is, get this book. This book is like this only. This is there. This is Word Power Made Easy is the book. It is available in the market. And this is the writer is Norman Lewis. You can see the size of the book now. Okay. This is the size of the book. Okay. And this is around 700 pages are there in this book. There are around 47 sessions which we really need to read. It is not even 1 month job, but if you say one session every day I read, I can take maximum around 2 months to read this book. And why I suggest this book to my students? Just because the reason when we read this book, we find that a student learns around 4,000 words in an easy way. There is nothing like रटना जिसे आप कहते हैं. ये नहीं दिया हुआ कि वर्ड दे रखा है और आप रट रहे हो. नहीं, उसके सिनोनिम दे रखे हैं, उसके एंटोनिम दे रखे हैं. नो माय डियर, ऐसा कोई सिनोनिम एंटोनिम नहीं दिया हुआ है. दिस बुक इज बेसिकली ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि समझना कैसी है. वर्ड अपने आप आपको आने लगेगा. दैट इज व्हाट द केसेस. ओके, तो वर्ड समझने के लिए, लर्निंग करने के लिए वो हमें समझना है कि क्या होगा. If someone knows, it's perfectly all right. If he does not know anything, I tell you one thing, simple example. अगर आप कहते हो कि डेमोक्रेसी क्या होता है, simple example. I am not here to teach you, so I say demo is people and crazy is rule. It means a rule by people. Then if you know the word democracy, then you know the word autocracy. Then you know the word plutocracy. Then you know the word aristocracy. Now this one thing is very clear in a student's mind after knowing this कि crazy rule होता है. So now it will not be difficult for you to learn कि यार crazy rule होता है तो ये rule वाला है. फिर डेमो का मतलब people है तो people का rule होता है. तो वहीं से फिर हम उठाते हैं कि यार एक डेमोग्राफी होती है. ग्राफी मतलब स्ट्रक्चर और डेमो मतलब पीपल. तो पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जब आप स्टडी करते हो देन वी कॉल इट डेमोग्राफिक स्टडी होती है. इट मीन जहां पर भी डेमो आएगा वहां पर इसी तरीके से यूज होगा. जहां पर क्रेसी आएगा वहां रूल होगा. इट मीन्स दीज आर काइंड ऑफ रूट वर्ड्स, से प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स विच मेक लर्निंग इजी द वर्ड्स. ओके, आप ऐसे सुनते रहेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा. तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि इस बुक को पढ़ लेना. This kind of hint this book is trying to give you. Okay, now how to go about this book? Ultimately this is what I want is, I am not promoting the book, my dear. Let me tell you one thing, we are just trying to promote a good book for our students because this is good for your career. Okay, I have read it many times. I have been reading this for my students many a time. I have read it say 10-15 times. काफी सारे तो यार पढ़ा कर रट ही जाते हैं. For you as a beginner, काइंडली रीड दिस. आप पहली तो बात ये फिजिकल बुक बाई करिए, पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश मत करिए. अभी अगर कोरोना का टाइम है और अगर आपको नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो सकता है, बट जब द मोमेंट आई थिंक नाउ दिस इज अवेलेबल, मेनी शॉप्स आर ओपन, यू कैन डू इट. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले आप कुछ भी मत करिए, पेज नंबर 32 पर आ जाइए. दिस इज पेज नंबर 32. ओके, सेशन नंबर 1, दैट इज व्हाट द पेज नंबर 32 इज. ओके, यहां से आप शुरू करिए. क्या करना है, करना यह है कि पेज नंबर 32 में अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट आई वांट यू टू लर्न इज, पेज नंबर 32 पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या करना है. सेशन 1 है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, बस 4 ही पेजेस की एक एक्सरसाइज दी हुई है. उसके बाद यहाँ सारी 4 ही पेज का एक आपको पढ़ने का चैप्टर दे रखा है और पीछे एक एक्सरसाइज दी हुई है.
नो व्हाट इज डिजायर्ड? डिजायर्ड ये है कि भैया आप इसे पढ़ो। पढ़ो मतलब वर्ड फॉर वर्ड यू कीप रीडिंग इट, एंड वंस यू रीड व्हाट हैपेंस इज यू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द लैंग्वेज, यू अंडरस्टैंड कि वो राइटर क्या कन्वे करना चाह रहा है। अब वो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन इफ यू आर रीडिंग इट फास्ट आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। तो रीड स्लो, लेट एवरी वर्ड कम टू यू, इम्बाइब होने दो उसको ग्रेजुअली, वन बाई वन। नाउ व्हाट आई से इज, अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, आई एम रीडिंग वन पैराग्राफ फॉर योर हेल्प। व्हेन आई से योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। Every decision you make is based on the answer to one question, what is in it for me? यानी आप लाइफ में जो भी काम करते हैं आप ये कहते हैं मुझे क्या मिलेगा। If your selfishness, greed and ruthless desire for self advancement hurt other people, that is too bad। ये मैंने आपको समझाया कि आपके सेल्फ एडवांसमेंट की नेचर से दूसरों का नुकसान होता है, यह गलत बात है। आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा दिस इज अ टफ वर्ड पैल, डॉग ईट डॉग एंड ऑल दैट, एंड आई फॉर वन एम नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इफ यू आर सच काइंड ऑफ पर्सन, द बुक राइट्स यू आर एन ईगोइस्ट, यू आर एन ईगोइस्ट, यानी जो आप अपने ही फायदे का काम देखते हैं, दूसरे का नहीं देखते, वो ईगोइस्ट हो गया। इसका मतलब वो सेल्फिश हो गया। ओके, आपको समझ आ गया? फिर दूसरा एक पैराग्राफ और पढ़ता हूं। The height of conceit, it is written there, the height of conceit. Okay, now the second paragraph says, now let's see, have you heard about all the money I am making? Suppose मैं आपकी क्लास में आया और आते ही मैंने ऐसे स्टाइल मारना शुरू करा कि भैया मैं बहुत पैसे कमा रहा हूं। तो मैंने ऐसे बोला, have you heard about all the money I am making? Did I tell you about my latest amorous conquest? Let me give you my opinion. I know because I am an expert at practically everything. Okay, you are boastful। ऐसा आदमी क्या है? You are boastful to the point of being obnoxious। You have only one string to your conversational bow। What is that? Namely yourself। आप अपनी ही बात कर रहे हैं। And on it you play a number of monotonous variations, what you have, what you think, what you have done, how good you are, how you would solve the problems of the world, etc. ad nauseam। अगर आप इस तरीके के शख्स हैं तो आप फिर ईगोटिस्ट हैं। ईगोटिस्ट का मतलब क्या हुआ? जो डींगे हाँक रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है, अभी मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास ये मेरा वो, यानी द वन हु बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, बोस्ट ऑफ हिमसेल्फ, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज ईगोटिस्ट है, यानी वो घमंडी है। और जो अपने फायदे की बात करता है वो सेल्फिश है। स्कूल में आज तक आप क्या सीखते आए? आपने आज तक यही सीखा कि वो बड़ा घमंडी है, वो किसी से बात नहीं करता, यार वो बड़ा ईगोइस्ट है। नहीं, वो ईगोइस्ट नहीं है, वो ईगोटिस्ट है। ईगोइस्ट तो आप और मैं सभी ईगोइस्ट हैं। ह्यूमन नेचर इज लाइक दिस ओनली। हम अपने फायदे की बात देखते हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। महात्मा बुद्ध तो शायद ही कोई होंगे। आप मेट्रो में चढ़ते हैं तो क्या सीट के लिए आप भागते नहीं हैं? आप बैठ जाते हैं, मैं खड़ा रह जाता हूं, या मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े रह जाते हैं, क्या हुआ? हम ईगोइस्ट नहीं हुए? तो ऐसे तो ह्यूमन नेचर में सभी ईगोइस्ट हैं, कोई कम कोई ज्यादा। उसके बारे में बात करेंगे, ईगोसेंट्रिक क्या होता है, ईगोमैनियक क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ईगोइस्ट का मतलब सेल्फिश है, जो अपने फायदे की बात कर रहा है, और ईगोटिस्ट वो है जो घमंडी है, जिसको हम बचपन से ईगोइस्ट बोलते आए। आपके टीचर्स ने भी वही बोला, लेकिन घमंडी को ईगोटिस्ट बोलना है, और उसको आपको क्या ईगोइस्ट बोलना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ईगो और इस्ट है। ईगो का मतलब होता है सेल्फ, और इस्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। तभी तो साइंटिस्ट बनता है, गायनेकोलॉजिस्ट बनता है, वैसे बनता है। यानी जो ज़्यादा सेल्फ के बारे में बात करता है कि मुझे मिल जाए और किसी को ना मिले, वो ईगोइस्ट हो जाता है। और ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में अगर आप बात करेंगे तो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट को पैरेलली आप देखो तो ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट के बीच में क्या वर्ड फर्क है? इस टी का ही तो डिफरेंस है। और ये टी जो है वो टॉक कर रहा है। इसका मतलब जो टॉक कर रहा है वो घमंडी है, अपने बारे में टॉक करता है। जो ईगोइस्ट है वो ईगो का एक्सपर्ट है, ईगोइस्ट हो जाता है। अगली बारी आप गलती नहीं करेंगे, ये अब आपको समझ आ गया। ये तो आपने ये सीखा जो पिछले 17, 18, 20 साल में आपने गलत पढ़ा होगा शायद। आई एम सेइंग लाइक दिस। नाउ माय कंसर्न इज व्हाट यू शुड रीड। आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, लेकिन माय सेइंग इज कि आप इसे धीरे पढ़िए, स्लो पढ़िए। और अब अगर आप मेरी बुक में देख सकते हैं तो मैंने यहां पर अबव बोर्ड के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि आपको अबव बोर्ड मीनिंग नहीं पता है।
रुथलेस क्या है, डॉग ईट डॉग क्या है, पैल क्या है, कंसीट क्या है, कॉन्क्वेस्ट क्या है, एमोरस क्या है, ऑब्नॉक्शियस क्या है, बोस्टफुल क्या है, मोनोटनस क्या है, एड नॉजियम क्या है। अब एग्जाम में तो ऊपर एड नॉजियम लिखता है और नीचे 4 ऑप्शन देता है। एग्जाम में ऊपर ऑब्नॉक्शियस लिखता है, 4 ऑप्शन देता है। आपको कैसे मतलब आएगा? तो जब आपने ये बुक पढ़ी, वाइल रीडिंग आपने सेंस समझ लिया। बट इससे कि एक बार आप 1 पेज 2 पेज या 4 पेज आप पढ़ लीजिए, स्लो पढ़िए, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग क्वाइट गुड, ठीक है, आपको काफी समझ आ जाएगा। अराउंड 60 70 80% भी समझ आ सकता है। हो सकता है आपको लगे मेरे को 100% समझ आ रहा है, परफेक्टली ऑल राइट। वापिस आइए, वाइल रीडिंग आपने क्या किया था, पेन अपने हाथ में रखिए, बॉल पेन रखिए जिसकी टिप बारीक होती है, वो पेन रखिए, बॉल पेन। गर्ल्स नॉर्मली ट्राई टू राइट विद पेंसिल, सॉरी माय डियर, दिस बुक इज गोइंग टू बी विद यू फॉर होल ऑफ लाइफ। राइट विद पेन इन दिस बुक, ओके। पेन से अंडरलाइन करिए अबव बोर्ड, पढ़ते पढ़ते सबकॉन्शियस में पढ़ते रहिए, लेकिन ये आपको पता है कि रूथलेस मुझे नहीं आता, अंडरलाइन करिए। आप अबव बोर्ड को करिए, डॉग इट डॉग को, कंसीट को करिए, एमोरस को करिए, जो जो डिफिकल्ट वर्ड आपको लग रहे हैं उनको अंडरलाइन करिए। और ये 4 पेज पढ़ लीजिए। आपने चारों पेज पढ़ लिए, उसके बाद वापस आइए, जो अंडरलाइन वर्ड किए थे उसके वर्ड मीनिंग इसी बुक पर लिखिए, इसी बुक पर लिखिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दाएं बाएं जैसे मैंने लिख रखा है। होप यू आर एबल टू सी माई बुक। आई हैव मेड इट सच थिंग कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने ऊपर भी काफी कुछ लिखा है, नीचे भी लिखा है, जस्ट फॉर माई रेफरेंस, बिकॉज वेन एवर आई रीड दिस बुक व्हाट हैपन्स, वो वाले जो वर्ड आगे पीछे लिखे हैं वो मेरे रिकॉल हो जाते हैं। ज्यादा समझदार बनकर अलग से कॉपी लगा लोगे तो वो मुश्किल हो जाएगी। राइट हियर ओनली व्हाट हैपेंड, आपने 4 पेज पढ़ लिए, फिर आपने अंडरलाइन करे हुए वर्ड का मीनिंग लिख लिया, हो गया। फिर आप यहां आ जाइए, फिर देखिए यहां पर वो आपको एक्सरसाइज देता है। इधर उसने लिखा है ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, जो उसने वर्ड मीनिंग सिखाए हैं, उसके आगे उसने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है और जंबलिंग कर दी है। यू हैव टू फाइंड आउट, मार्क द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। फिर वो पूछ रहा है, फिर नीचे मैचिंग पूछ रहा है, इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश। आपने मेरे साथ पढ़ ही लिया, इज एन ईगोइस्ट सेल्फिश, हां या नहीं? तो आपने कहा हां, बिकॉज आपने रिकॉल करा हमने ईगोइस्ट क्या था। अरे भैया जो अपने फायदे की बात करता है ये तो ईगोइस्ट, आपको पता चल गया सेल्फिश हो गया। तो आपने यस लिख दिया, यस या नो में पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है, इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोटिस्ट। इज मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का मतलब हम्बलनेस, इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोटिस्ट। तो आप जानते हैं जो मैं कर रहा है, जो घमंड कर रहा है, वो मॉडेस्ट तो कहां होगा, इसका मतलब नो हो जाएगा। तो आपने कैसे नो या यस कैसे जवाब दिया, क्योंकि आपने वो पहले 4 लाइनें ढंग से पढ़ी थी, उसका मीनिंग समझा था, वो आपके दिमाग में छप चुका है, वहां से आपने आंसर लिखा है, हो गया। फिर आगे उसी को रिवाइज करवा रहा है आपके स्पेलिंग के लिए। 1-2 पेज की एक्सरसाइज है। वंस यू आर डन दिस एक्सरसाइज यू आर थ्रू। सेशन 2 2 पेज का सेशन है, पीछे एक्सरसाइज है, दैट्स इट। फिर आपका ये सेशन 3 2-3 पेज का सेशन है, फिर आके एक्सरसाइज है। इसका मतलब क्या है कि 3-4 पेज का सेशन है और 2-3 पेज की एक्सरसाइज है। दिस विल टेक एटलीस्ट एन आवर ए सेशन। अगर आप मेरी तरीके से करेंगे तो पढ़ना पहले, साथ साथ अंडरलाइन करना, फिर जो वर्ड मीनिंग नहीं आता है उसको अंडरलाइन करा जो आपने था वहां पर वर्ड मीनिंग लिखना, फिर दोबारा पढ़कर समझना और फिर एक्सरसाइज करना। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, दिस विल टेक 1 आवर, दैट इज व्हाई आई सेड 47 सेशन मींस 2 मंथ्स। लेट्स अंडरस्टैंड लाइक दैट। अगर डेली में 10 सेशन पढ़ लोगे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, याद रखना। ये 1 से ज्यादा सेशन आप एक दिन में नहीं करेंगे, मेक श्योर, ओके। आपको रट जाएगा तो फिर भूल जाएगा, समझना है, ये आपको वैसे ही समझा रहा है। ओके, दिस इज वेरी गुड बुक। व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई स्टडीड दैट टाइम, से आई एम नाउ 51। बताओ यार, इसी एज में मैंने 30 साल से 35 साल में मैंने इस बुक को कितनी बारी पढ़ाया है, लेकिन बुक की वैल्यू खत्म नहीं हुई। बुक जितनी मेरे टाइम पर अच्छी थी उतनी आज के टाइम पर अच्छी है, क्योंकि बुक अच्छी है ही है, और दिस इज गुड फॉर एवरीवन। ओके, समझिए वहां पर। तो ये आपने सेशन 1 सेशन 2 आप 10 सेशन कर लीजिए। जब आपके 10 सेशन हो जाएं तो उनको पीछे जाकर रिवाइज करिए। एक दिन लगेगा, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे आई गारंटी ये 10 सेशन करने के बाद यू विल हैव मोर देन 500 वर्ड्स इन योर ग्रैप। आपको मैं पूछूंगा और आपको आंसर आता होगा, ये मैं गारंटी करता हूं। आज की डेट में मैं 9th के स्टूडेंट को भी ये बुक पढ़ा देता हूं, क्योंकि उस एज में वो मेरी सुनता है, पढ़ने को तैयार होता है। आप तो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, यू कैन वेरी वेल डू, इट इज नॉट डिफिकल्ट। बस ओनली थिंग पैशन चाहिए। सेशन ए डे
10 days afterward come back, revise the whole thing. 10 सेशन करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यार मुझे इतने वर्ड्स आते हैं, फिर से 10 सेशन और पढ़िए. 20 सेशंस जब आप पढ़ लें और उसको एक रिवाइज कर लें तो समझ लीजिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा बहुत ज़्यादा, एंड देन यू विल फील कि यार मुझे चीज़ें आती हैं. उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा. 20 सेशन के बाद आप खुद पढ़ेंगे. पीपल कम एंड टेल मी कि सर दिस बुक टॉक्स टू अस. बिलीव मी, इट्स लाइक दिस ओनली. ओके, जब आप ये पढ़ लेंगे 20 सेशन तो फिर पीछे आएंगे. यहां पर एक 517 नंबर पेज है. 517 नंबर पेज पर उसने एक डिक्शनरी टाइप की बना के दी हुई है. यहां पर बहुत ही अच्छी है, फैबुलस. लेकिन आप पहले दिन नहीं पढ़ेंगे, पहले दिन पढ़ेंगे तो बाउंसर लग जाएगा, फिर आएगा कुछ नहीं. जैसे मैं टीचर की तरह बता रहा हूं, मेरी बात मानिए. 10 सेशन पढ़िए, 20 सेशन पढ़िए, फिर आप आगे आइए. अगर आप समझदार हैं तो फिर आप ही समझदार हैं, लेकिन आपको मेंटर की बात माननी चाहिए. 517 पेज पर बाद में आए, 20 सेशन करने के बाद. ये कहीं जा नहीं रहे, लेकिन 517 पर आओगे तो आपको काफी सारे वर्ड पहले से आते होंगे. रीडिंग देम विल बी इजी फॉर यू. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब आप जब यहां आते हैं तो 517 नंबर वो क्या करता है, वो वर्ड बताता है अबेश, फिर बताता है अबेट, एब्डिकेट, अबरेशन, अबहोर, ऑब्जेक्ट, देन एबनिगेट, एबॉर्टिव, एब्रिज, एब्सोल्यूट, एब्सॉल्व, एब्स्टिनेंट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रूज, अबिस्मल, और फिर एकोलेट और समथिंग समथिंग. आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 517 के जो पेजेस हैं इसके काफी सारे वर्ड्स जो हैं सारे ए बी वाले ही हैं. धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ए बी वाले सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं या अवे होते हैं. एब्यूज, गाली देना, नेगेटिव वर्ड है. ठीक है. एब्सेंट, अगेन प्रेजेंट नहीं है. समझ रहे हैं बात को. अबहोर, हेट है, नेगेटिव वर्ड है. एबॉलिश, इरेडिकेट करना है, नेगेटिव वर्ड है. नाउ व्हाट डू यू फाइंड इज ए बी वाले सारे नेगेटिव होते हैं. तो यानी ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ए बी वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं. एग्जाम में अगर वो ए बी वाला वर्ड देता है तो नीचे से आंसर निकालना आसान हो जाता है. फिर उसने पहले ए बी वाले दिए हैं, फिर उसने ए सी वाले दिए हैं, एकोलेड, एकॉस्ट, असर्बिक, फिर उसने ए डी वाले दिए हैं, एडहरेंट, फिर वो ए यू वाले दे रहा है, फिर ए एफ वाले दे रहा है. फिर आपको पता ही चल जाएगा. एफिनिटी का मतलब अफेयर होता है, यानी ए एफ वाले सारे वर्ड पॉजिटिव होते हैं, एसोसिएशन वाले होते हैं. ओके, तो एडजॉइनिंग, एडजस्ट, तो जो एडोर, ये सारे वर्ड पॉजिटिव होते हैं. सारे मतलब काफी सारे. तो यानी ए बी वाले नेगेटिव, ए डी वाले पॉजिटिव, ए एफ वाले, एसोसिएशन वाले, इस तरीके से आपको मिलने लग जाएंगे. तो आपको काफी सोल्यूशन मिल जाएगा, वर्ड आपको पिक होने लगेंगे. फिर यहां पर उसने एक टेबल भी बना के दे रखी है, हाथ के हाथ आपसे टेस्ट भी ले रहा है. तो यानी अगर आप इसे कर लोगे तो बात बन जाएगी. इट मीन्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. इसमें अच्छा और भी दे रखा है, एक सेशन है, मुझे सेशन नंबर, उसमें इसमें लिखा है कि हाउ टू लर्न स्पेलिंग. जब हम आपको स्पेलिंग कराते हैं तो आपको स्पेलिंग नहीं आते, तो स्पेलिंग के लिए हमने कहा कि भैया हाउ टू स्पेल ए वर्ड. 433 पेज है, आप पढ़िए. यू विल बी वेरी हैप्पी. आपको लगेगा कि वाह यार मैंने कुछ सीखा है. 433 पेज पर पढ़ लेना, या पहले भी पढ़ सकते हैं. ये 5-7 पेज दे रखे हैं, स्पेलिंग की एक्सरसाइज दी हुई है, करिए. इट मीन्स आप सेशन 1 से शुरू करिए, सेशन 10 तक पढ़िए. लेट मी समराइज. 10 तक पढ़ने के बाद रिवाइज करिए, फिर 11 to 20 पढ़िए, फिर रिवाइज करिए. 20 सेशन रिवाइज कर दीजिए, हो गया. यू विल बी नोइंग मोर देन 1000 वर्ड्स, आई गारंटी ऑन दिस. एंड आपको उसके बाद वर्ड देखकर पता चलने लगेगा कि ये क्या कहना चाहता है, काफी समझ आ जाएगा. उसके बाद 517 पेज पर आ जाइए, 517 पेज से आगे पढ़ते रहिए, वो आपको समझ आने लगेगा. इफ यू डू दिस बुक इन not more than 2 months, you will say thanks to me personally. I can guarantee on that. Okay, now it is expected of all the young students, read this book and learn more. If you know the words, your English will be good, and exams you will be able to crack these things. You have plenty of time. Kindly do this. For any other query, you have my number. We can talk about that anytime. You can call me or you WhatsApp me. Thank you very much, my dear. God bless you.